I am Sameer Awasthi, Associate Professor in Department of Computer Science and Engineering, Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology, Lucknow. Today I am going to teach you the object oriented system design, and my topic is encapsulation and information hiding. So, first of all, the basic building block of object oriented technology means the terminology of object oriented system consists of these following things. Means when we think in terms of an object, in terms of object oriented system, the basic thing is the object, second one is the class, second one is the class, third is in encapsulation and data hiding, very important topic, then message passing, inheritance, polymorphism and generalization and specialization. These are known as basic building block of an object oriented technology or system. Now, come to the next slide. What is encapsulation and information hiding? Encapsulation, as the name suggests, encapsulate, we have to encapsulate something into a box, wrapping up the box and put somewhere else. This is a layman language, layman term, we can say the encapsulation. Now, in technical terms, encapsulation is the process of binding both attribute and method together with a class. Means within a class, method and attribute उनको एक साथ लाके रैप कर दिया. So, encapsulation is the process of binding together both attribute and method within a class. Now, through encapsulation, the internal detail of a class can be hidden from outside world. It permits the element of the class to be accessed from outside only through the interface provided by the class. What does it mean? हमें करना क्या है, एनकैप्सुलेशन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है बच्चों. एनकैप्सुलेशन के थ्रू हम अपनी क्लास में जो हमारे पास जो हमने क्लास बनाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने क्लास डिफाइन की. उस क्लास के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ पब्लिक हैं, कुछ प्राइवेट हैं. अब ये जो क्लास है, इस क्लास का जब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, मींस मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मींस मैं इंस्टेंस क्रिएट किया ऑब्जेक्ट का, क्लास का, तो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा. इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास इज नोन एन ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट से मैं क्लास के किस मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं. गॉट माई पॉइंट. इस ऑब्जेक्ट से मैं क्लास के पब्लिक डेटा को एक्सेस कर सकता हूं, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता हूं, वो मुझे यहां पे देखना है. तो एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस बाइंड अप दीज एट्रीब्यूट एंड मेथड टुगेदर. हमने एनकैप्सुलेट कर रखा है, एनकैप्सुलेट कर रखा है इन मेथड को, एट्रीब्यूट को विद इन अ क्लास, और अब हम उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उस इंस्टेंस से, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से इसके पब्लिक को, मेंबर को, इसके प्राइवेट मेंबर को अगर हम एक्सेस कर ले जाएं, उसको कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पे एनकैप्सुलेशन, इट परमिट द एलिमेंट ऑफ द क्लास टू बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ओनली थ्रू द इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द क्लास. Very important concept. And next slide is there. This is a picture. This is a picture of encapsulation. A real meaning of encapsulation. Now, this is a class. This is a class. It contains data members and some method. Method having some behavior. So, this contains data members, method, and we have to encapsulate this class as variable and method are put together into the class. Got my point?
तो एनकैप्सुलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग बोथ एट्रीब्यूट एंड मेथड टुगेदर विद इन अ क्लास. इट इज ए प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग both attribute and method together within a class. Okay, agree? Now अगर मैं बात करता हूँ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की, ये तो हो गया टेक्निकल मेथड जो मैंने अभी आपको दिखाया. दिस इज ए टेक्निकल एग्जाम्पल. एक क्लास है जावा में, हमने क्लास डिफाइन की, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे वेरिएबल और मेथड को इसमें रखा, बनाया मैंने. ये जावा का हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उनके थ्रू मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास का आपको बताया. What the real meaning of encapsulation in real life? So actually some daily life example of encapsulation includes, first example is the car. सबने चलाई है, जानते हो, आपने देखा है सबने. तो कार का एग्जाम्पल एनकैप्सुलेशन के लिए कैसे हो सकता है, समझते हैं. एज अ ड्राइवर you know how to start the car by pressing the start button, and internal detail of the starting operation are hidden from you. Means आपने कार की की ली और कार की चाबी आपके पास है, आपने स्टार्ट किया कार को, आप ड्राइविंग सीट पे आ गए और आप कार चलाने लगे. अब आप ऐसा तो नहीं करते कि भाई इसका इंजन कैसे वर्क कर रहा है, इंजन 4 स्ट्रोक है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, वट एवर, कौन सा ऑपरेशन. इंजन के बारे में तो आपको कोई नॉलेज नहीं है ना, आपको केवल स्टीयरिंग मिला है, आप कार चला रहे हैं. तो इंटरनल डिटेल जितनी भी हैं वो आपके लिए नहीं है, वो हाइड कर दी गई हैं. इंटरनल डिटेल आपके पास नहीं है. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन. कार एज अ ड्राइवर you know how to start the car by pressing the start button, and internal detail of the starting operation are hidden from you. So the entire processing is hidden from you, otherwise we can tell starting operation is encapsulated from you. One another example, like nowadays everyone has a cell phone. सबके पास सेल फोन है. सपोज मोबाइल इज अ क्लास, एक क्लास है मोबाइल. इसके इंस्टेंस, इस क्लास के इंस्टेंस क्रिएट किए, डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट किए. मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल, आईफोन है, सब किसी के पास. तो डिफरेंट टाइप के मोबाइल हैं. ये क्या है, इंस्टेंस हैं इसी मोबाइल के, मोबाइल क्लास के. मोबाइल क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दीज क्लास लाइक नोकिया, सैमसंग, आईफोन. Some features of mobile dialing a number call some method internally which concatenate the number and display it on the screen, but what is it doing we don't know. Means मैंने उस मोबाइल पे क्या काम किया, नंबर डायल किया और नंबर डायल करने के बाद उसको कनेक्ट किया, कॉल कनेक्ट हो गई. कॉल कनेक्ट होने के बाद इंटरनल ऑपरेशन क्या हो रहा है, किस तरीके से उस मोबाइल के बैकग्राउंड में जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो तो मुझसे हिडन रखे गए है ना, वो मुझसे हिडन रखे गए. अब मेरे पास जो डिस्प्ले आ रहा है वो सिर्फ इतना आ रहा है कि ये कॉल कनेक्ट हो गई है, एंड इसके अलावा मुझे बाकी जो इंटरनल है उससे कोई मतलब नहीं वहाँ पे. तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. Cell phone and car, it's a daily life example. Now other one is the other feature is information hiding. A class is designed such that its data means attribute, can be accessed only by its class method and insulated from direct outside access. This process of insulating an object data is called data hiding or information hiding. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं हम क्या हो रहा है. इन द क्लास सर्किल, दिस इज ए क्लास सर्किल is a class. The data hiding can be incorporated by making attribute invisible from outside the class and adding to
more method to the class for accessing class data. कौन कौन से वो दो मेथड हैं? फर्स्ट इज द set value and other one is the get value. Set value method to assign value to x coordinate and y coordinate. Get value method to retrieve value from x coordinate and y coordinate. Here the private data of object my circle cannot be accessed directly by any method that is not encapsulated within the class circle. It should instead be accessed through the method set value and get value. Okay. The basic concept of information hiding hopefully समझ में आया होगा आपके. That in this information hiding method the class is designed such a way that data can be accessed only by its method and insulated from the outside world. This is the information hiding. Now one question arises, what is the advantage of information hiding? क्या एडवांटेज है इंफॉर्मेशन हाइडिंग के? सबसे पहला एडवांटेज है इंफॉर्मेशन हाइडिंग के केस में सिक्योरिटी. द मेन एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग और डेटा हाइडिंग इज द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी फीचर, हम जो चीज़ आपको एक्सेस नहीं करने देना चाहते हैं उसको हम आपको प्रोवाइड ही नहीं करते. एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ डेटा हाइडिंग. हम उसको हाइड कर देते हैं वो फीचर, जिससे कि आपको केवल जो चीज़ आपके लिए है वो ही आपको प्रोवाइड की जाए. फॉर एग्जांपल कार और मोबाइल, हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन आपको दी ही नहीं, वो है ना. एनकैप्सुलेटेड डेटा, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट. नाउ data hiding, second point is the data hiding ensure the exclusive data access to the class member and protect object integrity by preventing unintended or intended changes. Last point is the abstraction. Abstraction at design level can be used to achieve data hiding. At design level abstraction is used. अब एक क्वेश्चन आता है, what is abstraction? Abstraction क्या है, abstraction का यूज क्या होता है? Abstraction is a technique of hiding unnecessary detail from the user. The user is only given access to the detail that are relevant. Vehicle operation, ATM operations are the classic example of abstraction in the real world. मैंने आपको बताया अभी एब्स्ट्रैक्शन का क्या बेनिफिट है, व्हाट एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ओके, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग. एब्स्ट्रैक्शन एट डिजाइन लेवल कैन बी यूज टू अचीव डेटा हाइडिंग. डेटा हाइडिंग के लिए डिजाइन लेवल पे हम क्या यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो एब्स्ट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है डेटा हाइडिंग के लिए, इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए. होपफुली समझ में आया आपने. एब्स्ट्रैक्शन इज ए टेक्निक ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल फ्रॉम द यूजर. हाइडिंग सम अननेसेसरी डिटेल टू द यूजर. यूजर के पास से जो भी इररेलेवेंट डेटा है वो उसको प्रोवाइड ही ना करो. जब तो आप उसको वो इररेलेवेंट डिटेल भेजोगे ही नहीं जो उसके लिए यूज नहीं करना, तो वो डेटा उससे हम, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ATM का एग्जाम्पल. इन ATM वी हैव टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम ATM एंड वी हैव टू पुट ATM कार्ड इनटू द स्वैप द ATM कार्ड इनटू द मशीन. मशीन से स्वैप करने के बाद ऑप्शन आता है हमारे पास, आपको कितने रुपीज़ विदड्रॉ करने हैं. हमने उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देते हैं, या आपको डिपॉजिट करने हैं, विदड्रॉ करने, व्हाटएवर. इसके अलावा आप ये जो अपने अकाउंट से ही विड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऐसा नहीं है कि आपको विड्रॉ करने हैं ATM से 1000 रुपीज़, आपने अपना ATM कार्ड लगाया और किसी दूसरे अकाउंट से विड्रॉ हो गए. नहीं, वो डिटेल क्या है आपको जो प्रोवाइड किया. एब्स्ट्रैक्शन आप इसके पीछे काम कर रहा है, इसके पीछे ये लॉजिक काम कर रहा है एब्स्ट्रैक्शन का. आपको केवल उतनी ही डिटेल दी गई है जितनी आपको ज़रूरत है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट.
Now, difference between encapsulation and abstraction. What is encapsulation? What is abstraction? There are some points. There are some point basic difference. One by one शुरू करते हैं. First of all, the abstraction. Abstraction is used for hiding data and giving relevant result. Abstraction कहाँ पे यूज होता है? Use for hiding unwanted data. It is not data. It is hiding unwanted data and giving relevant result. Okay. This is abstraction. Now, what is encapsulation? Hiding the code and data into a single unit to protect data from the outside world is the encapsulation. अब आप कहोगे आप एक ही चीज बता रहे हैं. नो, देयर इज ए थिन लाइन. मैंने पहले भी आपको कहा था, देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट. फर्स्ट इज द एनकैप्सुलेशन एंड सेकंड वन इज द एब्स्ट्रैक्शन. हाइडिंग द कोड एंड डेटा इनटू सिंगल यूनिट टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज एनकैप्सुलेशन, एंड used for hiding unwanted data and giving relevant result is abstraction. Got my point? Now, one can use abstraction using interface and abstract class. Abstract class के लिए हम यहाँ पे abstraction कैसे हम यूज कर सकते हैं? One can use abstraction using interface के थ्रू and abstract class. Abstract class बनाए या interface. Then on the other hand, encapsulation, one can implement encapsulating using access modifier. यहाँ पे हम access modifier का यूज करते हैं. Abstraction solve the problem in design level. Most important point, abstraction solve the problem in design level. Design level पे abstraction को हम यूज करते हैं to solve the problem. On the other hand, encapsulation solve the problem at implementation level. या बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या हम बात करते हैं? डिजाइन लेवल की बात कर रहे हैं. और यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है बेटा? इम्प्लीमेंटेशन लेवल की बात हो रही है. तो ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन से एब्स्ट्रैक्शन मीन्स hiding implementation using abstract class and interface. Abstraction के केस में बात करें, for simplicity we can say abstraction means hiding implementation using abstract class and interface. And for encapsulation, for simplicity encapsulation means hiding data using getters and setters method. These are the 4 points of abstraction and encapsulation. Now, moving towards the next slide, these are the references that we use, and basically in this picture and now in this class, in this PPT, there are 2 concepts, encapsulation and information hiding. Encapsulation आपको बताया मैंने कि कैसे वर्क करता है. नाउ कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं एनकैप्सुलेशन क्या है. बेसिकली एनकैप्सुलेशन, जैसा मैंने बताया कि आपको इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग बोथ एट्रीब्यूट एंड मेथड टुगेदर. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग बोथ एट्रीब्यूट एंड मेथड टुगेदर विद इन अ क्लास. अगर मैं किसी एक क्लास की बात करूं तो उस क्लास में कई सारे मेथड्स होंगे, कई सारे एट्रीब्यूट होंगे उस क्लास के. इन सबको एक साथ मैंने क्लास के विद इन अ क्लास बाइंड अप कर दिया. एंड थ्रू एनकैप्सुलेशन इंटरनल डिटेल ऑफ ए क्लास कैन बी हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. अब ये जो इंटरनल डिटेल है वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हिडन है. नाउ इट परमिट द एलिमेंट ऑफ द क्लास टू बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ओनली. इट परमिट द आउटसाइड ओनली through the interface provided by the class. This is the basic feature of encapsulation. Now, हम ये वाला डायग्राम हम देख चुके हैं कि इसमें कैसे हमने किया. ये क्लास है, इस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को, डेटा मेंबर और मेथड हैविंग सम बिहेवियर, कुछ भी बोल सकते हैं हम. यहाँ पे इसको हम
इस तरीके से अगर मैं एक लेमन टेक्नोलॉजी की तरह बात करूं तो ये इस तरीके से मैंने इसको एनकैप्सुलेट करके दिखाया। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, मेथड हैं और ये विद इन द क्लास हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हमने एनकैप्सुलेट कर दिया, एक कैप्सूल के फॉर्म में कर दिया। एनकैप्सुलेट, रैपिंग अप द डेटा, बाइंडिंग द डेटा, वेरिएबल एंड मेथड इनटू अ सिंगल पीस, दिस नोन एज द क्लास। इस तरीके से हमने बाइंड अप किया। ये हमारा टोटल प्रोसेस जो कहलाता है वो एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस कहलाता है। नाउ कुछ हमने इसमें एग्जाम्पल देखे। कार इज़ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल कि कार को हम कैसे ड्राइव करते हैं। कार को ड्राइव करते हैं और हमें कार की ड्राइविंग करते समय जो इंटरनल डिटेल्स हैं उनसे कोई भी हमें यहाँ पे नहीं है उससे कि कार के इंटरनल डिटेल से क्या कोई भी हमें यूज़ नहीं करना उसको। सपोज इंजन कैसे वर्क करता है और कितने डिफरेंट टाइप के इंजन होते हैं, दैट्स आर अनवांटेड थिंग्स जो हमें उसका यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। तो इट्स कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन। एज अ ड्राइवर वी नो हाउ टू स्टार्ट द कार by pressing the start button, and internal detail of the starting operation are hidden from you. So the entire starting process is hidden from you, otherwise we can tell starting operation is encapsulated from you. Similar example of, जैसे हमने कार का एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया, प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया, इसी तरीके से हम यहाँ पे सेल फोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल ऑफ द एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ये पेन है, दिस इज अ पेन। यहाँ पे भी एनकैप्सुलेशन यूज हुआ है। हाउ, आप बताएंगे कैसे एनकैप्सुलेशन यूज हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या काम किया, इसके अंदर एक रिफिल है जिससे मैं यूज करता हूँ लिखने के लिए। नाउ दिस पेन आर हैविंग some different attribute like refill, having different part। मैंने इसको ओपन किया, ये इसके अंदर रिफिल है, दिस इज अ टिप, दिस इज अ स्प्रिंग, एंड इसको रैप कर दिया मैंने, बंद कर दिया। अब मुझे इसकी इंटरनल डिटेल से कोई मतलब नहीं कि ये पेन कैसे वर्क कर रहा है, क्या चल रहा है। इससे मेरा काम क्या है, राइटिंग करना, लिखना। दिस इज द प्रोसेस। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल ये हो सकता है, नो डाउट। तो एनकैप्सुलेशन हर जगह है। डेटा को, जो भी हमने डेटा के वेरिएबल को, मेथड को एक साथ एक सिंगल बाइंड अप किया और उसको एक पीस में बना के रखा, बाइंडिंग अप टुगेदर इनटू अ सिंगल पीस is known as the encapsulation. So encapsulation is the process of binding both attribute and method together within a class. होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके बाद हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, क्लास इज डिजाइन, अ क्लास इज डिजाइन such that its data and attribute can be accessed only by its class method and insulated from direct outside access. This process of insulating an object data is called data hiding or information hiding. The process of insulating an object data is called data hiding or information hiding. तो हमने इसको मेनली क्या है, इसको क्यों किया जाता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग के एडवांटेज क्या हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन हाइडिंग और डेटा हाइडिंग हम क्यों करते हैं। तो उसका आंसर अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्यों किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस में, तो बेसिक पर्पज़ है हमारा, सबसे पहला पर्पज़ है इज फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेटा हाइडिंग का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का यूज करते हैं। तो हाउ वी सिक्योर द डेटा बाय यूजिंग, एक क्वेश्चन आता है माइंड में, हाउ वी सिक्योर द डेटा बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन हाइडिंग। किस तरीके से आप सिक्योर करते हैं ये बताइए। तो अब देखो, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का यूज़ करते हुए मैंने डेटा कैसे सिक्योर किया। एक्चुअली क्या है, हम इसमें आपको ये देखिए, इंफॉर्मेशन हाइडिंग में एब्स्ट्रैक्शन का यूज हो रहा है। ये मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाया था। इंफॉर्मेशन हाइडिंग में किसका यूज हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन का यूज हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हुए यूज्ड फॉर हाइडिंग अनवांटेड डेटा एंड गिविंग रेलिवेंट रिजल्ट।
जो भी अनवांटेड डेटा है उसको आपको हटा देना है, उसको देना ही नहीं है यूजर को, तो सिक्योरिटी तो अपने आप ही हो जाएगी। अगर मैं सारा का सारा डेटा यूजर को प्रोवाइड करा दूंगा तो क्या होगा, यूजर उसका मिसयूज कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज द मेन एडवांटेज ऑफ द इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इसके बाद डेटा हाइडिंग की बात करते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन एट डिजाइन लेवल पे यूज होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल फ्रॉम द यूजर। these are the some references that we are used in this slide. Thank you.